Good morning, all. How are you? I hope you're healthy and fit. So, today's topic is data type and data storage. How we can deal with the data type in Access. Today, we will talk about this. So, let's start. So, data type is a type of data. Means किस टाइप का डेटा है आपका, विच टाइप ऑफ डेटा यू आर यूजिंग इन अ दैट पर्टिकुलर फील्ड और अ कॉलम. So every relational database store the data in a table. Each table consists of a field and every field has its own set of properties which describe the characteristics and behavior of data. The most important property of a field is its data type. A field data type determine what type of data you can enter into a field. For example, a field whose data type is number can only store numeric data and does not allow you to enter text data into it. Means, suppose you have a table and you have a table of a class 10th and structure the roll number, name and address. You are specify the number, roll number, field or a column contain number type of data. Second column, name, it's contain the text type of data. And address, which contain number and text both, but number which is can't calculate or you don't want to count them. So that is a text or number we are deal with in an address field. So you can say it alphanumeric or a text, both. So that is a data type of a dat table, which is give me a point of view that is which give you a clear perspective कि that field deal with which type of data. तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसका, जिससे अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके. Come to the desktop. Just click here. Type ACCESS. You can see. Just click on Access 2016 and this is open. Click on a blank desktop database. Give the name. Okay, it's okay. Just click and just open the database. Now right click on the table and go to the design view. Give the name of the design view CLASS. Maybe you haven't able to see. This is a class 10th. Okay, the class now 10th. Okay, so this is a view of the table. This is a default view. Every table you get in this view. So just remove the primary key from here. Just design tab and click on the primary key. So it's removed from here. So just click here and just click the EMP means employee. मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, शॉर्ट में लिखता हूँ EMP ID मीन्स एम्प्लॉयमेंट आईडी. कोई भी नंबर हो सकता है, ऑटो नंबर, वो जनरेट कर सिस्टम से. ठीक है, मैं नहीं दूंगा. देन नेम EMPNAM नेम, एम्प्लॉय का नेम. नेम कैसा होना चाहिए? ठीक है, टेक्स्ट टाइप का होना चाहिए. टेक्स्ट में कैसा? शॉर्ट. ठीक है. देन एड्रेस. एड्रेस में कैसा होना चाहिए? शॉर्ट से नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास लॉन्ग टेक्स्ट होना चाहिए. एड्रेस बहुत बड़े भी हो सकते हैं, छोटा भी हो सकता है. मगर पूरा एड्रेस में हम ज़्यादातर लॉन्ग टेक्स्ट लिखते हैं. उसके बाद आता है आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग. डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ. यहाँ पे कैसा डेटा टाइप आना चाहिए? डेट टाइप का. ठीक. अब आपका जो है फ़ोटो होनी चाहिए, तो फ़ोटो लिख देते हैं. यही फ़ोटो होगा, मैं फ़ोटो लगाऊंगा यहाँ पे. फ़ोटो के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट टाइप के लिए MP3 भी लगा सकते हैं. किसी वीडियो को सेव करने के लिए हमारे पास एक डेटा टाइप होता है OLE ऑब्जेक्ट. ठीक है, इमेज MP3 और फोटो टाइप के को सेव करने के लिए हमारे पास ये डेटा टाइप होता है. उसके बाद आता है हमारे पास सैलरी. ठीक है, सैलरी किस टाइप का होगा? नंबर टाइप का होगा. तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर. देखिए नंबर आ गया. और उसका ये है डिस्क्रिप्शन. आप उसके बारे में कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं. जैसे ऑप्शनल, ये ज़रूरी नहीं है था, मगर ये ज़रूरी होता है. डेटा टाइप वी हैव टू चूज़. बट इसमें क्या होता है, आप कमेंट कर भी सकते हैं, रिमार्क लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, नो प्रॉब्लम.
चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब इसमें लिख देते हैं इसका ईमेल। ईमेल में कैसा आना चाहिए? ईमेल में आएगा आपका हाइपरलिंक, डॉक्यूमेंट जो रिज्यूमे है उसका, रिज्यूमे और जो भी डॉक्यूमेंट है वो कहाँ से बिलोंग करता है सारे डॉक्यूमेंट में यहाँ पे रखूँगा। तो डॉक्यूमेंट के लिए मैं करूँगा अटैचमेंट, ठीक है। बस इसके अलावा भी बहुत सारे डेटा टाइप है, देख लेते हैं यहाँ पर कौन से हैं। जैसे लाइक देखिए सारे हो गए हाइपरलिंक, हाँ यस और नो। देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए लाइक डू यू हैव अ कार, डू यू हैव अ कार, तो इसमें जो आंसर होगा यस और नो में होगा, ठीक है। तो इसके लिए यस और नो टाइप। उसके बाद देखिए कौन सा डेटा टाइप है हमारे पास। देखिए एक तो है कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब विद इन अ टेबल अगर मुझे इसके किसी भी रो को कैलकुलेट करना होता है और मुझे वहाँ पे साइन थीटा या कोई भी मैथमेटिकल मुझे फंक्शन लगाना होता तो मैं इसे लगा सकता हूँ। जैसे देखिए क्रिएट किया मैंने, तो देखिए ये मुझसे पूछेगा कि किस टेबल में, ठीक है। तो टेबल को, ये टेबल में, इस टेबल के किस कॉलम में, ठीक है। कांस्टेंट लगाऊंगा, फंक्शंस लगाऊंगा, कौन सा फंक्शन लगाऊंगा, इस क्लिक करते ही ये आपको देखिए इस तरह सारे के सारे फंक्शन दे देगा। तो इस तरीके से मैं लगा सकता हूँ। अभी मेरे पास ऐसा कोई कॉलम नहीं जिसके ऊपर मैं इस तरीके का फंक्शंस अप्लाई करूँ, ठीक है। तो इसलिए कट कर देता हूँ मैं। उसके बाद आता है आपका ये कैलकुलेट हुआ ये लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड का मतलब सेम है कि आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप सोचिए मेरे पास है, मैंने एक टेबल बनाया है, एक टेबल है मेरे पास, उस टेबल में मैंने टोटल किया है। अब मुझे परसेंटेज निकालना है, तो जब तक टोटल को मैं नहीं यूज़ करूँगा तब तक इसका परसेंटेज नहीं निकाल सकता। तो सोचो किसी दूसरे टेबल से मुझे उस टोटल की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर लुकअप विजार्ड ले लूँगा। लुकअप विजार्ड करते ही जो होता है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ डालना ज़रूरी है, इस टाइप से कुछ भी डाल दीजिए तो ये होगा, ठीक, ऐसे कर लेते हैं। और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप का दे देते हैं, ठीक है। तो अब इसे इसमें लेते हैं लुकअप विजार्ड। देखिए लुकअप विजार्ड के लिए ऐसा मैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ये आ गया कि किस टाइप का आपको लुकअप चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको टेबल देगा, टेबल से चाहिए या क्वेरी से चाहिए, क्वेरी पूछनी है उससे, तो इस टाइप से। तो अब भी मैं इसको भी नहीं कर रहा इसमें, ठीक है। तो कैंसिल कर देते हैं। अब देखते हैं हम कि ये जो है इसमें हम डेटा को किस तरीके से फिल करते हैं। तो सबसे पहले राइट क्लिक कीजिए एंड डेटा शीट व्यू में आइए, ठीक है। डू यू वांट टू सेव? यस, ओके। अच्छा यहाँ पर भी ये मना कर रहा है, चलिए कुछ ले लेते हैं यहाँ पर। रिमार्क और रह लेते हैं फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे टेक्स्ट में ले सकता हूँ क्योंकि लॉन्ग में ले लेता हूँ मैं, क्योंकि फ़ोन नंबर को कैलकुलेट नहीं करना है मुझे। तो चलिए यहाँ पर यस। तो देखिए ये हमारे पास टेबल है, हिंदी बड़ी टेबल है। तो सबसे पहले देखिए ये न्यू आ रहा है क्योंकि ये ऑटो नंबर है, ठीक है। अब नेम डाल देता हूँ, मैं अपना नाम डालता हूँ MANOJ मनोज। एड्रेस डाल देता हूँ रुद्रपुर। देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग में ये आ गया। यहाँ से क्लिक करूँगा मैं, कोई भी ले लूँगा चीज़, ठीक है। और उसके बाद फ़ोटो मांगेगा ये मुझसे, फ़ोटो में यहाँ पे आइए और जो है देखिए कोई इमेज है तो मैं देखूँगा, न्यू फोल्डर में देख लेता हूँ। सोचिए अभी के लिए मैं इसी इमेज को जो है चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। कहाँ गया? ये रहा, ये है, ले आया मैं। तो देखिए यहाँ पे इमेज आ गई। अब सैलरी जो है तो मैं डाल देता हूँ कि 25,000 है। मेल यहाँ पे लिख देता हूँ MANOJ@gmail.com, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्लिक कीजिए, कुछ भी अटैचमेंट होगा तो आप अटैच कर सकते हैं, ऐड कीजिए। यहाँ पे चले जाइए कहीं भी, ठीक है। यहाँ पे चले जाता हूँ मैं डेस्कटॉप में, और डेस्कटॉप में जाके आप कुछ भी ले सकते हैं। सोचिए ये है, इसे आप अटैच कर सकते हैं, अटैच करके ओके कर दीजिए, अटैच हो गया। अब देखिए यहाँ पे डू यू हैव अ कार, ठीक है। अगर यस है तो यस, वरना नो है। रिमार्क में कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। फ़ोन नंबर आप अपना
कुछ भी डाल दीजिए, टेक्स्ट कुछ भी नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका नंबर है, ठीक है। ज़्यादा हो गया है अब, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको एंटर कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया, ये देखिए 1 आ गया, ये दूसरा है, और इसको मैं फिल नहीं करूँगा क्योंकि ऑटोमेटिकली ये मैंने क्या लिया, ऑटो नंबर, ये मैंने क्या लिया, ऑटो नंबर। तो ऑटो नंबर में आपको नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही क्रिएट कर देगा। मगर यहाँ पे एक चीज़ मैंने और लिया है, नंबर यहाँ पर सैलरी में, तो क्या है, नंबर इसको मैं कैलकुलेट करूँगा, इसलिए नंबर लिया है। तो यह इस तरीके से है। और एक नंबर लिया है मैंने यहाँ पर, जो कि हमारे पास क्या है, फ़ोन नंबर है, मगर उसको मैंने टेक्स्ट लिया। क्यों? क्योंकि इसको मुझे कैलकुलेट नहीं करना है, तो इसलिए टेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से मैं टेबल को बनाऊंगा, एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द डेटा टाइप। और इसलिए मैं इससे कोई भी क्वेरी पूछ सकता हूँ, और ये दूसरे एप्लीकेशन से बहुत अलग है, दैट इज़ एक्सेस, इसलिए हम इसे बोलते हैं डेटाबेस। देयर आर मैनी data type in Access, so I give you a list of data type just in a table view, the name, type and descriptions. Just read it and note it for the examination. So first column is the name of the data type, second is a type, which type, and in the descriptions why we use and what is the capacity, what is the range. So which point, from which point to which point it exists or it can store the data. So just pause the video and write it down. Thank you so much for watching the video. If you like the video, like it, comment and share it, and goodbye for now.